watching Miss Travel Potter, and this is Ansel. I am back with another travel and magical episode, and welcome to the last episode of Vietnam series. All of you know that my purpose to visit Vietnam was to participate in the biggest magic reality TV show in Vietnam, जो हमने जीता भी है. And if you haven't seen those videos, पहले 5 parts release हो चुके हैं. I think you should see them. This is the last episode, and in this video, I'm going to guide you to travel better because I'm going to tell you how to utilize 24 hours in Ho Chi Minh City. जब मैं शूट कर रही थी for this game show in Vietnam, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला to explore the city, and we finally got one day in hand कि आज हमारे पास एक दिन है, आज we finally can explore the city. I'm glad that my profession lets me to travel to places, and जब मेरे पास वो एक दिन था, I actually wanted to utilize it to the fullest. मुझे था कि मुझे इस दिन में सब कुछ देखना है. So out of my experience, I'm going to guide you कि हम 24 hours को properly utilize कैसे कर सकते हैं when in Ho Chi Minh City. So begin the day with the beautiful and the most touristy thing that we have to do in the city, that is to visit Saigon Sky Deck, which is the tallest building in the Ho Chi Minh City, which gives you a panoramic view of the entire city. So basically अगर हम देसी भाषा में बोले तो this place is the Burj Khalifa of Ho Chi Minh City. The ticket of this place is 2 lakh Vietnamese dongs, which is equal to right 700 to 800 rupees. And 49th floor पे हम जाते हैं. सबसे पहले वहाँ पे binoculars हैं जिससे आप पूरी city के मस्त view ले सकते हो. They also have library and history attached to this place जो आप explore कर सकते हो. I will also recommend you अगर आप यहाँ पे आओ तो प्लीज़ रात को आना, क्योंकि मेरे पास रात को टाइम नहीं है. रात से रिहर्सल शुरू है राउंड 2 की, इसलिए मैं दिन में आई हूँ. अगर आपके पास रात को टाइम है तो प्लीज़ रात को आओ, क्योंकि रात को लाइटिंग होती है तो नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत होता है और फायरवर्क्स भी होती है. ऑल इन ऑल इट इज़ अ गुड प्लेस टू गो. यू शुड गिव इट अ ट्राई. द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज Ben Thanh Market. This market is symbol and soul of Ho Chi Minh City, and when I say soul, I really mean it. Because everyone, including tourists, including locals, are such a big fan of this market. पहले तो अगर मैं इस मार्केट का इंट्रोडक्शन देती तो मैं ये कहती कि हायर वर्जन ऑफ जनपथ है या any other Indian market है, but now I definitely would want to alter that introduction. That imagine 15,000 traders, shops and stalls at one place. So it is a hell big of a market, and बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी है. यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा. Clothes, bags, footwear, fruits, makeup, cosmetics and लाजवाब souvenirs. ऐसे खूबसूरत souvenirs जो हमने कभी देखे भी नहीं है. So Vietnamese people are actually very very creative. मेरा मन करा यहाँ की वैरायटी देखकर कि मैं यहाँ सब कुछ ले लूँ, बट इतने ज़्यादा नहीं खर्चने मुझे. और आई गॉट सम बैग्स फ्रॉम योर, बहुत क्यूट बैग है. एंड आई ऑल्सो गॉट की रिंग्स. वो तो मैंडेटरी है, कहीं भी जाना है वहाँ की रिंग्स तो कलेक्ट करने ही करने हैं. एक प्रो टिप जो हर जगह लागू होती है वो ये दैट यू रियली नीड टू बार्गेन अ लॉट. किस लेवल तक का बार्गेन चलता है? दे विल कोट यू $100 एंड आप उसको 50 नहीं 40 नहीं 20-15 तक गिरा सकते हो. सो इफ दे कोट यू $100 यू कैन गेट द सेम आइटम फॉर $15. तो काफ़ी मार्जिन होता है. ऑब्वियसली दैट अप्लाइज टू एवरी कंट्री दैट वी विजिट. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while shopping, and this place is very cheap, good variety but hectic. It's going to be really hectic if you are going to explore the complete market. You should give it a try, क्योंकि अगर आप कुछ भी शॉप करने वाले हो तो this is the best place to shop. And obviously जब आप इतना सारा घूमोगे तो भूख तो लगी जाएगी. And if you are a vegetarian just like me, you are definitely going to struggle in Southeast Asian countries. ऐसा नहीं है कि कंट्रीज में बाहर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, बट इंडियन रेस्टोरेंट्स आर कन्फाइंड टू सिटी सेंटर. जब कोई आप जगह विजिट करते हो तो उसकी जो सिटी सेंटर मार्केट है वहाँ पर आपको सिलेक्टेड इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं. बट इफ़ यू आर नॉट इन द सिटी सेंटर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रगल. एक अच्छी सी टिप है जो वहाँ पे एक्सपीरियंस करके मुझे मिली, दैट वियतनाम में वेज खाना मिलता है. लोगों को लगता है कि नहीं मिलता, बट मिलता है. एंड दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश मच. तो आप जब उनसे बोलोगे कि मुझे वेज चाहिए तो दे विल डेफिनेटली मिस्टेक इट वेज एज चिकन और ऑमलेट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो एक टर्म यूज होती है वियतनामीज लैंग्वेज में विच इज कॉल्ड क्वान चे. सो क्वान चे उनकी लैंग्वेज में वेजिटेरियन है. एंड जब आप किसी देश में हो
तो आपको उनका कुजीन ट्राई करना चाहिए इफ़ दैट इज़ अवेलेबल इन वेज। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स थे वो हमें इस वेज रेस्टोरेंट में लेकर गए एंड आई रियली लव्ड इट। कैबेज रोल्स और उनकी वेज वेराइटी ऑफ फूड मैंने एक्सप्लोर किया। सो इफ़ यू आर वेजिटेरियन एंड स्टिल वांट टू ट्राई अ डिफरेंट कुजीन रादर देन इंडियन, यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो अब आप सिटी के पैनोरामिक व्यूज ले चुके हो, बहुत सारी शॉपिंग कर चुके हो और पेट भर के वेजिटेरियन खाना भी खा चुके हो। इट्स टाइम टू डू सम दर्शन ऑफ भगवान जी। वेलकम टू द मोस्ट पीसफुल पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट। यू शुड विजिट Pho Quang Temple, which is the beautiful Buddhist temple in Ho Chi Minh City. This is out of my experience. मैंने वियतनाम विजिट किया है, मैंने ताइवान में ट्रैवल किया है, मैंने चाइना में ट्रैवल किया है एंड दिस इज आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। जब मैंने इन सारे देशों के टेम्पल एक्सपीरियंस किए, आई रियलाइज्ड दैट ऑल द टेम्पल आर समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन आर्किटेक्चर एंड रिचुअल्स। तो जो इन सब जगह की वाइब है, जो आर्किटेक्चर है, जो रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सब इंडियन वर्शिप प्रैक्टिसेस से बहुत मैच होती हैं। जैसे कि हम लोग मंदिर में जाने से पहले फूल की थाली लेते हैं और सामग्री लेते हैं और चढ़ावा चढ़ाने के लिए, वैसे ही इन सब टेम्पल्स में बाहर लोटस थे, फूल थे, फ्रूट्स थे, ताकि आप अंदर भगवान को जाके चढ़ाओ। दो बिलीफ सिस्टम बहुत अलग है, उनकी पेड़ की अलग मान्यता है, उनके प्रेयर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ऑब्वियसली लैंग्वेज डिफरेंट है। सो छोटे छोटे जो एसेंस लगा मुझे, वो इंडियन कल्चर से बहुत मैच करता हुआ लगा। सो वी हैव कम टू दिस टेम्पल called Pho Quang and basically ये टेम्पल बुद्धिज्म पर बेस्ड है। यहाँ पर बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा, और यहाँ पर एक पेड़ है विच इज़ वेरी मिस्टीरियस पेड़, और इसकी मान्यता ये है कि लोग इसके पास ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं और अगर उनके ऊपर एक फ्रूट गिर जाता है तो इट इज़ कंसिडर्ड वेरी लकी, भगवान का प्रसाद मिला है। ऑब्वियसली भगवान भी सारे एक होते हैं एंड द वाइब ऑफ द प्लेस इज वेरी पीसफुल एंड वी प्रेड फॉर आवर वेल बीइंग, वी प्रेड फॉर द अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट वे टू एंड द इंटायर डे। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर बोलनी है, दैट वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू ट्रैवल इन हो ची मिन सिटी और फॉर दैट मैटर इन द इंटायर वियतनाम इज टू रेंट a bike. Like 90 to 95% of population use bike as a mode of transport. तो वहाँ पे इतनी सारी बाइक्स हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपको रोड क्रॉस करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आपको वहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू एक्सप्लोर द इंटायर सिटी। आई स्पेंट माई इंटायर डे एक्सप्लोरिंग दीज प्लेसेस एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट वियतनाम is their people. They are so hospitable, they are so friendly, they are always smiling और वो आपको देख के बड़े खुश होते हैं। So all in all, I really enjoyed spending my 24 hours in Ho Chi Minh City. I really hope कि मुझे और ज़्यादा वक्त मिला होता वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, but out of all my experience, this is what I could guide you and I really hope you liked the video, and if you did, make sure you like, you comment, you share and spread this entire series because this is more about magic and less about travel. I know that, but I will keep coming up with more magical and travel stories. Until next time, आपको पता है आपको क्या करना है. You know that, right? Subscribe and auf Wiedersehen.